Hey students, a very good morning to all of you. I'm Ananya Modgil, class developer of Emerging 2 and I'm your teacher. Okay, so students, this video is in continuation of your previous one. So you all have to be ready with your second subject, which is Hindi. So kindly bring out your Hindi book as well as Hindi notebook where we will do revision, recap. Okay, so be ready with your Hindi book plus your Hindi notebook. Hindi की जो आपकी notebook है, you have to be ready with that, plus a sharp pencil and eraser is there with you. So hurry up, I am waiting for you. First of all, you have to open your Hindi notebook. I will give you some words जो हमने पहले से ही cover करे हुए हैं. You have to write those words. Okay, those हिंदी वर्ण जो मैम ने आपको हिंदी के वर्ण इंट्रोड्यूस कराए थे, लाइक ब, स, र, च, ल, है ना. जितने भी अभी तक हमने वर्ड्स कवर करे हैं, हिंदी के वर्ड्स भी और हिंदी के व्यंजन भी जितने भी कवर करे हैं, उससे रिलेटेड मैम आपको शुक्लेख बोलेंगे एंड यू हैव टू राइट इट इन द सेम वे, the way which we have do it in the previous session. Okay, so kindly open your Hindi notebook, take out a fresh page. Otherwise जो आपका previous page है ना, जिसमें आपने हिंदी के वर्ड्स लिखे हैं, वहीं पे ही you can make a line. आप partition कर सकते हो और वहीं पर ही 1 to 6 numbers mention करो and write over here. Don't use a fresh page, otherwise वो waste होगा. तो आप उसी में ही partition करके you have to write it. See, I will tell you. अब आपने यहाँ पर, ये आपका प्रीवियस पेज है जहाँ पे आपने वर्ड्स लिखे थे कुछ हिंदी के. तो अब आपने क्या करना है, टेक आउट दैट ओनली पेज, मेक अ लाइन जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पर भी आपको वैसे ही नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 द वे नंबरिंग इज हेयर. ओके, यहाँ पर आपने नंबरिंग करो 1 to 6 एंड आई विल से द शब्द and you have to write one by one. Okay, wait for a while. Yes, I will tell you how you have to do. See, आपने यहाँ पे 1 write down करना है, 1, then next में आपने 2, then 3, then 4, then 5 and then 6. Okay, ऐसे नंबरिंग करके you have to write today शब्द over here. जो मैम आज आपको करवाएंगे शब्द, वो यहाँ पर आपने write down करें. ठीक है. So hurry up, students. Let's start. So are you all ready now? Should I start? Okay, I hope so that now you all are ready. Let's start. So I'm saying the very first शब्द. ठीक है, सबसे फर्स्ट शब्द मैम बोल रहे हैं. आपने यहाँ पर जहाँ पे 1 लिखा है उसके आगे आप लिखोगे. So first is र स रस. र स रस. Write it down. Hurry up, I am speaking it again. R S rus. Hurry up, I am able to see you. Yes, you all have to write it in between lines. Hurry up, jaldi. R S rus. Very good. You all have done now. Should I come to the next shabd? Okay, the next is a b ab. अब आप क्या लिखोगे सेकंड में, यहाँ पर जहाँ पे आपने 2 नंबर डाला है वहां पर आप लिखोगे अ ब अब. अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ब अब. सबसे फर्स्ट नंबर था, सबसे फर्स्ट शब्द था र स रस. सेकंड इज अ ब अब. अ ब अब. हैव यू डन इट? Okay, now come to the third one. Third शब्द is त क तक. त क तक. क्या लिखना है आपने? त क तक. Hurry up. Again I am repeating, it's त क तक. I am repeating again 3 शब्द. ठीक है, जो मैम ने अभी आपको 3 शब्द करवाए हैं, दोबारा से मैम रिपीट कर रहे हैं. जिसने नहीं राइट डाउन करा है प्लीज राइट इट डाउन. र स रस. र स रस. अ ब अब. सेकेंड शब्द इज अ ब अब. यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है अ ब अब. नेक्स्ट त
क तक. First three you have done. ठीक है, चलो. Now come to the next one. Fourth शब्द you have to write is क र कर. क र कर. Again I am repeating, it's k r kar. Done it? Okay, now next is gh r घर. फिफ्थ शब्द is जहाँ पे आपने 5 नंबर डाला है वहां पे आप लिखोगे घ र घर. घ र घर. Very good. Okay, now next is s b. Last शब्द is s b sub. S b sub. Okay, I hope so. Now you have done it. One more time I am repeating all the शब्द. ठीक है, जितने भी शब्द मैम ने आपको भी बोले हैं दोबारा से मैम बोलने जा रहे हैं. किसी का भी अगर लेफ्ट आउट है, किसी ने नहीं लिखा है कोई भी शब्द, तो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड देन राइट इट अगेन. ओके, सो र स रस. अ ब अब. त क तक. क र कर. घ र घर. स ब सब. Okay, now students, I'm giving you some time. Complete it, then we will start with the today work. So those who have done with the श्रुतलेख, जिन्होंने श्रुतलेख कंप्लीट कर लिया. श्रुतलेख किसको बोलते हैं? डिक्टेशंस को. ठीक है, हिंदी में आप उसको श्रुतलेख बोलते हो. इंग्लिश में इफ आई एम गिविंग यू डिक्टेशन, तो अगर इंग्लिश में मैम आपको वर्ड्स देंगे राइट डाउन करने के लिए तो उसको डिक्टेशन बोलेंगे. ओके, ये मैम ने आपको पहले भी बताया था. अगेन आई एम टेलिंग यू. So students, those who have done with श्रुतलेख, जिन्होंने अपने श्रुतलेख लिख दिए हैं, keep your copy aside. मम्मा के साथ चेक करवानी है आपने. ओके, कोई जो भी करेक्शंस होंगी, you have to send the picture to me. I will correct it and then you have to write it again. Okay, जिन्होंने डन कर लिया है प्लीज ओपन योर बुक. Come on page number 2020. Today we will do a recap revision session in your worksheet. Okay, so this is your page number 2020. Let's open your page number 20. It looks like this. The number is mentioned below, 2020. So what is it? बच्चों को अपनी मेज पर वर्ण और चित्र कार्ड मिलाने को कहिए. So this task we will perform in our next session. Okay, as you know, this worksheet is divided in 2 parts. So we will do today the upper part, and in our next session we covered the rest of the portion. Okay, so students, before starting this worksheet, write the date on top, mention the date over here. Also circle the weather. Whatever the weather is today, you have to circle it. Go outside, check the weather and circle the clip art. You also have to circle the day as well. ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट वी हैव टू डू. सी, आपको चित्र गिवन है यहाँ पर अलग अलग, है ना. चित्र किसको कहते हैं? पिक्चर्स को कहते हैं. तो आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं और चित्र के नीचे क्या दिए गए हैं? आपको वर्ण दिए गए हैं. 2-2 वर्ण दिए हैं हर एक चित्र के नीचे. तो अगर आप फर्स्ट चित्र को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? ये क्या है? स से सपेरा. ये हमने बहुत बार कवर किया है. ऑल्सो इन योर टीयर 1 एंड टीयर 2 में भी हमने इसको बार बार अपने स शब्द को बार बार रिपीट बेसिस पे करा है ना. तो अभी तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको हम क्या बोलते हैं. स से सपेरा. तो ये वर्कशीट आपकी दोबारा से एक टेस्ट है, एक रीकैप है कि आपको अब सारे के सारे वर्ण अच्छे से रिकॉग्नाइज हो गए हैं या नहीं है. ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस वर्कशीट एज अ टेस्ट. आप अपना टेस्ट लेके चलोगे इस वर्कशीट को कि आपको अब सारे वर्णों की रिकॉग्निशन है या नहीं है. ठीक है, चलो. नाउ अभी आपने क्या करना है? आपने अच्छे से चित्र देखना है और सही वर्ण पर निशान लगाना है. इसको हम क्या बोलते हैं? सही का निशान बोलते हैं. ठीक है, तो नीचे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. लेट्स रीड इट.
चित्र देखकर सही वर्ण पर सही का चिन्ह लगाएं। तो जैसा भी मैम ने आपको बताया है वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले चित्र देखना है और नीचे दिए गया जो वर्ण है उसमें से जो भी सही वर्ण है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यू हैव टू बिगिन विद द रेस्ट ऑफ। So take your pencil in your hands और सबसे पहले आप चित्र देखेंगे, वर्णों को नहीं देखेंगे बिकॉज वर्णों को देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले पहले आप चित्र देखोगे फिर ही आप देखोगे ना कौन सा सही वर्ण है। देखो इसको क्या बोलते हैं हम। Okay, now I am not going to tell you this worksheet, you have to attempt by own. Okay, सबसे पहले आप बताओगे and then ma'am will tell you the correct one. तो इसको क्या बोलते हैं? Let's see who will give the answer first. मैम प से पतंग। वेरी गुड, यस। इसको क्या बोलेंगे? प से पतंग। तो कौन सा है सही वाला? इसको बोलते हैं प से पतंग या इसको बोलते हैं? This one, ma'am. Very good. Yes. So here we have to put a small tick. Okay. Keep it in your mind that आपने small टिक लगाना है। सही का निशान जो है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं करना है। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। इसको क्या बोलेंगे? ब से क्या होता है? ब से बतख। यस, दिस इज ब से बतख। अब हमारा ब लेटर कौन सा है? दिस वन? नो मैम, दिस वन। वेरी गुड। सो कहाँ पर हम लगाएंगे सही का निशान? यहाँ पर लगाएंगे, है ना। चलो, आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट और सबको ये वर्कशीट कंप्लीट आती होगी, है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अब हम इसको क्या बोलेंगे? अ से अनार। तो अ से अनार कहाँ है? ये है, बिकॉज ये तो अभी हम करके आए हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब से बतख। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, राइट। ओके, चलो दिस वन इज डन। चलो यहाँ पे आएंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखो आपको फिर चित्र दिए गए हैं, है ना। चित्र है यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिए गए हैं? वर्ण दिए गए हैं हिंदी के। तो हम क्या करेंगे? मैम को तो पता ही नहीं है क्या करेंगे। लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू। वर्ण के साथ सही चित्र का मिलान करिए। तो हमें क्या करना है? सही वर्ण को सही चित्र के साथ मिलाएंगे, मतलब मैचित करेंगे। चलो, दिस वन इज डन फॉर यू बिकॉज आपको हिंट मिले दैट हाउ वी हैव टू डू। और स्टूडेंट्स, you can use your free hands to make a straight line, otherwise you can also use scale, है ना। स्केल होता है, उसकी हेल्प से भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट वर्ण। कौन सा वर्ण है ये? स से क्या होता है? स से सपेरा। तो चित्र में देखो कौन सा उचित चित्र है, सही चित्र कौन सा है? दिस वन। तो हम क्या करेंगे? स को स से सपेरे के साथ मिला देंगे। ठीक है, that this is done. Okay, now come on the next. This one you also have to do. आपने सिर्फ ट्रेस करना है। इसको क्या बोलते हैं? अ से अनार। ओके, नेक्स्ट आप करके बताइए मुझे क्या कहाँ है ये? क्या है पहले बताओ मैम। प से पतंग। यस, अच्छा प से पतंग का है? मैम को तो मिल ही नहीं रही है। कहाँ है चित्र प से पतंग? मैम दिस वन। यस, दिस इज राइट। सो लेट्स मैच इट। वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट इज, ये क्या है मैम? र से रस्सी। कहाँ है र से रस्सी? ये है? नो मैम, दिस वन। यस, मैम तो सब भूल गए हैं ना। माई ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। कीप इट अप। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, सो यू आर मोर स्मार्टर देन एवरीवन। तो ये क्या है? ब से बत्तख। चलो फटाफट से मैच करो। ब से बत्तख से कहाँ है? ये रहा, है ना। चलो, दिस इज डन नाउ। यू हैव कंप्लीटेड बाय ऑन। यू आर हैप्पी नाउ। सी, आपको हर एक टास्क खुद से इनिशिएट लो। अदरवाइज अगर आप खुद से इनिशिएट नहीं लोगे, आप ऑलवेज चाहोगे कि मम्मा मेरी हेल्प करे, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले टेक एन इनिशिएट कि आप खुद से कर सकते हो। ठीक है,
आफ्टरवर्ड्स अगर आप कुछ गलत करते हो तो मैम और मम्मा इज ऑलवेज विद यू टू करेक्ट यू, बट फर्स्टली यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. Okay students, that's all for your today Hindi session. In this session we had covered the first half of this page. Okay, and the second half of this page, ये जो आपका टास्क है ये हम फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से करेंगे. तो बी रेडी विद द फ्लैश कार्ड्स. आपके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे यू ऑल हैव टू बी रेडी विद द फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, तो हम फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से इस अपनी कंप्लीट करेंगे वर्कशीट. फाइन, so that's it. Have a good day. Till then you have to practice with all the शब्द. जैसे मैम आपको शुद्ध लेख देते हैं वैसे ही आपने घर पे भी बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाए. फाइन, चलो, हैव अ गुड डे. गॉड